اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کی اسکرین پر آپ نظر ڈالیں۔ ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 500، 200، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے، فلسطینی بھائیوں کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی نے یعنی اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ انداز میں بمباری کی۔ 8 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 40 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ حماس نے اب منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی ایک بار پھر بمباری جاری ہے۔ فلسطینی صحافیہ کی آیا سلیم کی رپورٹ کے مطابق شعبہ صحت نے رپورٹ دی ہے کہ 8 فلسطینی اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے ہیں اور 44 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیر کی شام اسرائیلی فوجیوں نے ایک رہائشی عمارت کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں سرایہ القدس کے رہنما بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری پر حماس کے ترجمان نے کہا کہ قابض فوج اسلامی جہاد تحریک کے اہداف پر بمباری کر کے سرخ لکیر عبور کر چکی ہے، پار کر چکی ہے، ساری حدیں گویا کہ پار کر چکی ہے، اور اب حماس نے کہا کہ اس کا منہ توڑ جواب اسرائیل کو دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بمباری کے بعد کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، ہم مزاحمت کے لیے متحد ہیں اور لڑنے جا رہے، اب کوئی ثالثی بھی نہیں ہوں گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کر دی ہے اور اسے ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست امریکہ سے، اس وقت خبر آ رہی ہے، اور امریکہ کی کئی ریاستوں اور کئی اسٹیٹ سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر منکی پاکس جو پھر ایک بیماری، ایک وائرس چل پڑا ہے، ان میں اس منکی پاکس کے کیسز میں امریکہ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد ملک میں کسی بھی وقت ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مریض اور مرنے والے کورونا سے امریکہ ہی میں تھے۔ امریکہ نمبر 1 پر رہا۔ دنیا جانتی کہ سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی سپر پاور نہیں ہے، میرے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی کورونا وائرس یوں سمجھیے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ، اور اب یہ ایک نیا وائرس منکی پاکس کے نام سے آ چکا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن مینجمنٹ ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کے اعلان کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی کبھی بھی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جا سکتا ہے، جس کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سے ہنگامی
फंड्स के इजरा में आसानी और सरकारी रुकावटों में नरमी हो जाएगी, जबकि माहिरीन कहते हैं कि मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकना शायद अब मुमकिन नहीं रहा। चाइना और अमेरिका की लगातार खबरें आ रही है और दूरियां, नफ़रतें, दुश्मनियां अब दोनों के दरमियान बढ़ती हुई खुली नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चाइना ने जिस तरीके से अमेरिका की कुछ शख्सियात पर पाबंदी लगाई है, तो अब खबर आ रही है कि नैन्सी पेलोसी जो ताइवान के दौरे पर गई और उस वक्त चाइना ने कहा था कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका को वार्निंग भी दी थी। अब खबरें आ रही कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी इस पर भी पाबंदी आयद कर दी, बैन लगा दिया। और वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा, अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीन की तरफ से जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ताइवान के गिर्द घेरा जो तंग किया जा रहा है और चीनी फ़ौजें वहाँ अब मशक कर रही है, तो एंटोनी ब्लिंकन अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसकी मजम्मत की, इसकी निंदा की, चीखे कहा कि चीन जो हरकतें कर रहा है वो सही नहीं है। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, एक पत्रकार लापता हुआ था जिसका नाम है अनस मलिक। खबरें आ रही है कि वो महफूज है और पाकिस्तानी सफारत खाने ने इसकी तस्दीक कर दी है। बताया जा रहा है कि अनस मलिक ने खुद भी एक ट्वीट के ज़रिए वतन वापसी की इत्तला दी है। सहाफ़ी जर्नलिस्ट अनस मलिक अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार को 1 साल मुकम्मल होने पर रिपोर्टिंग के लिए काबुल में मौजूद था, जहां जुमेरात की शाम से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। अनस से रब्ता न होने पर सहाफ़ती हलक़ों में तशवीश पाई जा रही थी। ताहम अब काबुल में मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान ने तस्दीक की है कि उनका अनस मलिक से राब्ता हो गया है और वो बखैरियत काबुल में ही मौजूद है। सफ़ीर ने एक ट्वीट में बताया कि उनकी अनस मलिक के साथ टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू हुई है और सफारत खाना उनके साथ राब्ते में रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अनस मलिक से राब्ता न होने पर उनकी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर किए जा रहे थे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है काहिरा से, मिस्र से। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली, माउंट एवरेस्ट सर करने वाली एक मिस्री खातून मनाल रुस्तम को रास्ते में 2 लाशें भी मिली। बड़ी खबर है ये। मिस्र खातून कोहे पैमा मनाल रुस्तम का मीडिया में चर्चा होता रहा है। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली पहली मिस्री खातून करार दी जाती है। बुध को उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने अपनी इस मुहिम की तफसीलात बताते हुए इंकशाफ किया कि उन्होंने बताया कि पहाड़ चढ़ते हुए मुझे 2 कोह पैमाओं की लाशें उस वक़्त मिली जब मैं हिमालय में वाक़ पहाड़ की 3री चोटी पर चढ़ने में मसरूफ़ थी। मनाल रुस्तम ने बुध की रात CBC मिस्री टीवी चैनल के प्रोग्राम में मेज़बान शाजली से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही और उन्होंने बताया कि मैंने पहाड़ पर चढ़ने की जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी तरबियत हासिल की। मैंने मुराक़बा किया कि मुझ पर कितना मुश्किल वक्त आएगा और मैं बर्दाश्त करूँगी। मैं अपने आप को बताना चाहती हूँ कि दुनिया तारीक होगी और इसमें हवा होगी। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि कुछ कोहे पैमा जो मुहिम जोई के दौरान मारे गए थे, तो मैंने खुद अपनी आँखों से 2 लाशें रास्ते में देखी है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि
एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।